ملک میں وکلا بارز کے سالانہ انتخابات میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں انڈیپینڈنٹ گروپ عاصمہ جہانگیر گروپ کے ہارون رشید اور پروفیشنل گروپ حامد خان گروپ کے توفیق آصف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ اس وقت جاری ہے۔ 13 نشستوں پر 34 امیدوار مد مقابل ہیں۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میلہ سج گیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہارون رشید اور پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف مد مقابل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مہر عمران نے ہمیں جوائن کیا۔ مہر عمران، بتائیے گا پولنگ کا عمل کب تک جاری رہے گا، کون سا گروپ دیکھنے میں بھاری نظر آتا ہے اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے انتخابات بھی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو جب جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کا بڑا تاثر ہوتا ہے، اور ان کی جو نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں وہ پوری پاکستان کے وکلا بار جو اس کے بائنڈنگز ہوتی ہیں کہ کوئی اسٹرائک کرنی ہو یا کوئی حکومتی کوئی معاملات ہوں، آئین و قانون میں تبدیلی کے حوالے سے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ بار متحرک نظر آئی ہے۔ اسی لیے سالانہ انتخابات کا آج پولنگ کا عمل صبح 8:30 بجے سے جاری ہے، جو شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ملتان کی اگر ہم بات کریں تو 315 ووٹرز ممبر جو ہیں وہ حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 4379 ووٹرز ممبرز ہیں جو مختلف جگہوں پہ بارز میں اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ملتان ہائی کورٹ بار میں اس وقت پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے، اور اس وقت ہم پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں جہاں پہ صدر ہائی کورٹ ملتان بار محمد اظہر مغل پریزائڈنگ کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ نے بات کی کون سا جو گروپ ہے وہ ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ 2 بڑے گروپ ہیں ہمیشہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل گروپ، جس میں انڈیپینڈنٹ سے عاصمہ جہانگیر کا گروپ ہے اور اس کا جو امیدوار ہے صدارت کا ہارون رشید ہے۔ اس کے ساتھ ہی حامد خان گروپ جو پروفیشنل گروپ ہے اس کا امیدوار توفیق آصف ہے۔ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ملتان بار میں وکلا کے جو سپورٹران ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ بھی ابھی ووٹ مانگ رہے ہیں اپنے اس میں۔ یہاں پہ عاصمہ جہانگیر گروپ کا پلڑا مجھے بھاری نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہم بات بھی کریں گے اس وقت تک کتنے ووٹرز نے ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے ہیں، اور پریزائڈنگ آفیسر سے بھی بات کریں گے، آپ کو پولنگ بوتھ بھی دکھاتے ہیں اور جہاں ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کا عمل بھی دکھاتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ سامنے ووٹ کاسٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ پولنگ بوتھ ہے، اور یہ ووٹ جو ہے وہ سینئر وکلا جو سپریم کورٹ بار کے وکلا ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی نگرانی پورا ایک پینل کر رہا ہے، جن میں پریزائڈنگ آفیسر سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ صدارت کے جو امیدوار ہیں ان سے ہم بات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پہ سکروٹنی کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ پریزائڈنگ آفیسر بھی ہیں، صدر بار محمد اظہر مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت تک کتنے ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں، اس پورے پولنگ کے حوالے سے کیا کہیں؟ تقریباً 315 میں سے 170 ووٹ اس وقت تک کاسٹ ہو چکے ہیں، اور 1 سے 2 بجے تک بریک ہے، 5 بجے تک ٹائم ہے۔ امید ہے کہ 300 کچھ جو ہے ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ پولنگ کی شفافیت کے حوالے سے سکروٹنی کیا ہو رہی ہے، امیدواروں کے لیے کیا لائے عمل جو ہے اپنایا گیا ہے؟ 100% سکروٹنی ہو رہی ہے۔ آئی ڈی کارڈ اور لائسنس کو لسٹ کے ساتھ ٹیلی کر کے بیلٹ پیپر ایشو کیا جا رہا ہے، اور دونوں جو صدور اور سیکٹریز کے پولنگ ایجنٹ ہیں وہ موقع پہ موجود ہیں، وہ بھی چیک کر رہے ہیں، اور ہمارا جو سٹاف ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے وہ بھی چیک کر رہا ہے، اور الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا۔ تو اس وہی وقت دیکھ رہا ہوں کہ بڑا پرامن یہ الیکشن ہے، حالانکہ الیکشن میں تو کبھی جو ہے وہ نعرے بازی ہوتی ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی گیم ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ وکلا ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کریم آف دی نیشن ہوتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ثابت بھی کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیدوار ان میں جو بھی بنے گا کتنا اثر ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر کا ملکی جو حالات ہیں، جو سیاست ہے آئین و قوانین میں بنانے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، جہاں بھی کہیں لا قانونیت ہوتی ہے تو سب سے پہلے وکلا آواز بلند کرتے ہیں، تو شاید کسی بھی گروپ سے جو بھی الیکٹ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ، تو انہوں نے کالے کوڈ کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر، وکلا کی فلاح، عدلیہ اور وکلا کے بہتری
बेहतरी के लिए जो है वो ही काम करना होता है। तो दो में से एक ने जीतना होता है, तो हम समझते हैं जो भी जीतेगा वो काले कोट के लिए ही काम करेगा। काले कोट के लिए काम करेगा। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, सदर बार भी हैं, यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं वो भी आए हैं, उनसे भी हम जानते हैं आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और आज के इलेक्शन के हवाले से क्या। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो तौफीक आसिफ साहब हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अपने ग्रुप के जो डिसाइडेड है वही कैंडिडेट है और पूरे उसी पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं यहाँ पे सीनियर लॉयर्स और भी मौजूद हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। यहाँ पे देख रहे हैं किसे सर सपोर्ट कर रहे हैं आज के इलेक्शन के हवाले से। मैं हारून को सर। और आज के इलेक्शन के हवाले से क्या। आज के इलेक्शन के हवाले से जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो जीतेगा। बिल्कुल अपने अपने वोटर्स की जो जीत के लिए जो परआज़म है। यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साबिक बार भी मौजूद हैं, नौजवान की क़यादत भी करते हैं। क्या देख रहे हैं आज के इलेक्शन। देखिए ये इलेक्शन बड़ा फ्रेंडली होता है और डेमोक्रेटिक वे से हम जो है हमारा जो बार इलेक्शन कंडक्ट होता है और दो उम्मीदवार हैं मैदान में और इंशाअल्लाह वी होप कि हमारा उम्मीदवार जो है भारी अक्सरियत से जीतेगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम बताएं तो 13 नशिस्तों पर 34। नानी ये बताइएगा इंतजामिया की जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इंतजामात की अगर हम बताएं, मेरे पीछे ये 4 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं और बाहर पुलिस की जो सख्त नफरी है वो भी तैनात की गई है, सिक्योरिटी के सख्त फराइज सर अंजाम दे रहे। लेकिन हम ये एक अच्छी बात भी है, अहम बात भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वोटर्स होते हैं वो बड़े सुलझे हुए होते हैं और क्योंकि उन्होंने उम्र गुजारी होती है, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस जो है बड़े। जी बहुत शुक्रिया, मेहर इमरान हमारे साथ थे। बहावलपुर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का मार्का जारी है। इंडिपेंडेंट ग्रुप आसिमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल हामिद खान ग्रुप से तौफीक आसिफ के दरमियान सदारत नशिस्त के लिए मुकाबला जारी है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का बहावलपुर में मार्का इस वक्त जारी है। इंडिपेंडेंट आसिमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद सदारती उम्मीदवार हैं। प्रोफेशनल हामिद खान ग्रुप से तौफीक आसिफ सदारत के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया महमूद जहीर ने। महमूद, इलेक्शन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बहावलपुर सुप्रीम कोर्ट के होने वाले इलेक्शंस के हवाले से हमारे साथ मौजूद है सदर हाई कोर्ट बार के नदीम इकबाल चौधरी साहब। चौधरी साहब बताइएगा कितना वोट कास्ट हो चुके हैं और क्या पोजीशन है। हमारा तकरीबन 80 से अबव वोट कास्ट हो चुके हैं। 85 वोट जो एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी दी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और 144 टोटल वोट है और इंशाल्लाह हम तवक्को कर रहे हैं कि इस दफा हमारा टर्न आउट जो है ये पहले से हमेशा से बल्कि ज्यादा होगा। इस दफा हमेशा से बेहतर रहेगा। हम चाहेंगे कि सीनियर वकला से भी इस सिलसिले में गुफ्तगू की जाए। सरदार साहब हमारे साथ प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हम किसको देख रहे हैं जीतते हुए? जी मैंने वोट कास्ट कर लिया है और मैं जीते हुए देख रहा हूं पूरी की पूरी येलो पर्ची जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? जी भून के सारे कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बेस्ट विशेष लाए हैं जी। आप जी हम भून साहब को ही कैंडिडेट सिंध से इंशाल्लाह हम पूरा का पूरा ग्रुप विन कराएंगे इंशाल्लाह। पूरा ग्रुप के हवाले से इस वक्त यहाँ पर पोलिंग का अमल हो रहा है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये वो पोलिंग बॉक्स है जहां पर सदर साहब बता रहे थे अभी हाईकोर्ट बार के 84 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। टोटल 144 वोट हैं बहावलपुर में जो सीनियर वकला यहाँ पर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। हम चाहेंगे कि और भी सीनियर लोगों से हम बात करें। जरा आसिम साहब कैसे हैं आप और ये बताइएगा कि आप वोटिंग के हवाले से कैसा देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पीसफुल तरीके से बहावलपुर में इस पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग हो रही है और तमाम जो मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट बार के वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में 80 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि आज फुल कास्टिंग होगी। और हम चाहेंगे आप भी अपना हिस्सा डालें। आप बताइएगा किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन जीत सकते हैं। जी ये मैं जो हूँ ना ये ग्रुप हारून रशीद साहब को सपोर्ट करने के लिए रहीम यार खान से हाजिर हुआ हूँ और मेरे क्लास फेलो हैं जवेद इमरान रांझा साहब मेंबर एग्जीक्यूटिव
उनको ख़ास तौर पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और इंशाल्लाह जीत हमारे पूरे पैनल की हो। आप क्या देखते हैं सर, कैसे? चौधरी सजाद अमजद खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जनाब, हमने वाज़े तौर पे अपने चौधरी परमून बशीर के लीडरान सरदार महमूद इकबाल खाकवानी और नदीम इकबाल चौधरी साहब की हदायत के मुताबिक इंडिपेंडेंट गुरर साहब हैं, एहसन भून साहब हैं और पीर जी कलवे हसन साहब हैं, हम पूरे इंडिपेंडेंट ग्रुप को, पूरे पैनल को वोट दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कैमरामैन दिखाएं, बड़ी गहमा गहमी है सीनियर वकला की जानिब से। ये हर तरफ सीनियर वकला मौजूद हैं और अपने अपने ग्रुप के और अपने अपने उम्मीदवारों के जीतने के हवाले से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही है और बेस्ट विशेज भी दी जा रही है। जो वोटर्स नहीं है वो बेस्ट विशेज के लिए यहाँ पे मौजूद है। खाकवानी साहब है एक और ग्रुप के यहाँ पर लीडर है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ थोड़ा गुफ्तगू करें, क्या देख रहे हैं, किसे जीत रहे हैं? सर इंशाल्लाह हमारा ग्रुप इंडिपेंडेंट जीतेगा और भारी अक्सरियत से जीतेगा। इंशाल्लाह 100+ होंगे अल्लाह के फजल। तो आप क्या देखते हैं सर? इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप जीतेगा और 100+ होंगे इंशाल्लाह। बस इसी तरीके से अपने अपने ग्रुप के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहावलपुर मुल्तान की एक नशिस्त भी है, उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूं। मखदूम कलीमुल्लाह हाशमी हैं जो कि यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप लड़ रहे हैं और उसके साथ उनके मद्दे मुकाबले हाफजा महनाज अब्बासी जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके साथ साथ उनके लिए भी यहाँ वोट पाकिस्तान से वोट लेंगे। इसी तरह हम चाहेंगे कि कुछ और भी सीनियर वकला से, सरदार साहब चाहूंगा कि आज के इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा मोहतरम, हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि हम जमहूरियत को प्रवान कर रहे हैं। अपने मुल्क की सियासत में भी यही सिखाना चाहते हैं कि इस तरह के इलेक्शन करें ताकि कोई बुरा अच्छा उसका पता भी चले और लोग अपनी खराबियां भी दूर करें अच्छे अंदाज से इलेक्शन होने पर। हम इस वक्त जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो है हमारा ग्रुप है जिसमें हारून रशीद साहब है। बज़ाहिर उनकी अच्छी पोजीशन है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो डिफीटेड है वो भी हमारा भाई है। बहुत शुक्रिया। जो हार गया जाएगा वो भी हमारा भाई है। किसे सपोर्ट कर रहे हैं वहां? जी माशाल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत गहमा-गहमी है। तमाम उम्मीदवार जो है ना पुर उम्मीद हैं, तो शाम तक जो भी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह जो है अच्छा तवक्कुआत सामने तवक्कुआत हैं। साबिक सदर हैं हमारे साथ हाई कोर्ट बार के अमीर अजम मलक साहब, उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। सर बताइएगा आज के इलेक्शन के हवाले से। जी, आज आप इलेक्शन देख रहे हैं, बड़ा दोस्ताना माहौल में हो रहा है। इंडिपेंडेंट ग्रुप की पोजीशन यहाँ बहुत मजबूत है बहावलपुर में और बड़ा पीसफुली पोलिंग जारी है। आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है। पीसफुली पोलिंग जारी है, आप देख रहे हैं। और इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है कि बहावलपुर के जो सीनियर तरीन वकला हैं 144 रहीमिया खान से जिनका ताल्लुक है बावल नगर बहावलपुर से, वो यहाँ पे अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 84 से ज्यादा सीनियर वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप में मुकाबला है। शाम तक रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। जी शुक्रिया। महमूद जहीर हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। जिला बहावलनगर में इलेक्शन के लिए इब्तदाई तौर पर हल्का बंदियों के काम का आगाज कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जिला में 142 यूनियन काउंसिल्स कायम की जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम अली शेख बताएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान होते ही जो तैयारी हैं उनका आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जिला बहावलनगर खुदा बख्श साहब उनसे बात कर लें कि किस तरह की तैयारी हैं और क्या अब तक जो है वो क्या कर चुके हैं। आप बताइएगा जी किस तरह आप उनको यूनियन काउंसिल में तकसीम कर रहे हैं और किस तरह की तैयारियां जारी हैं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शंस के मुताबिक जैसे कि 9 अक्टूबर को हमें डायरेक्शन दी गई थी कि हमने अपनी जितनी भी डिलिमिटेशन की जो कार्रवाई है वो शुरू करनी है, वो हमने कर दी है। और उसमें जो है हमारे मैप्स के ऊपर और डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन का है उसके हवाले से भी हम तैयारी कर रहे हैं। एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 35,50,400 समथिंग है। तो उसको हमने फिर वो डिवाइड किया हुआ है। जो फार्मूला हमें गिवन है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फिगर दी हुई है कि आपने 25,000 तक जाना है, तो उसमें 10% की वेरिएशन भी हमने रखी हुई है। तो हमने इस फार्मूले के तहत हमने जो यूसीज जो हमने रफली फाइंड आउट की हुई है, वो रफली हमने 142 तक हम जा रहे हैं कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो यूसीज बनेगी वो 142 बनेगी।
अपने फार्मूले के तहत और 10% वेरिएशन के वो रखते हुए भी। तो इस तरह जो है वो जिला भावनगर में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर जी शुक्रिया कासिम अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं बल्दियाती इंतखाबात हर सियासी आदमी का मुतालबा था। साबिक लीगी सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई की गुफ्तगू। कहते हैं मुल्तान में सबसे बड़ा बल्दियात का ग्रुप मेरा है। 2025 लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर बल्दियाती इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून के परचम तले भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद अनवर से। जी आज बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो जारी हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का तयन करने का भी जो है वो काम जारी है। इस वक्त साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबका बल्दियाती इंतखाबात में भी अहम रोल था और इनके भाई मेयर मुल्तान थे। तो सब साबका बल्दियाती इंतखाब में आपने अपने भाई को मेयर मुल्तान बनाया और आपका ग्रुप जो है वो वाज़ेह तौर पर एक नज़र आया। अब बल्दियाती इंतखाबात की जो है वो गूंज फिर सुनाई दे रही है। क्या तैयारियां हैं और किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल हम सब का मुतालबा था, बल्कि कई प्रोग्रामों में भी ये हमने गुजारिश की थी अपनी ही गवर्नमेंट से कि बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। तो ये अच्छा हो गया, अनाउंस इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और कल जो असम्बली ने भी बिल पास कर दिया। तो इसका मतलब है 2025 वाले जो कानून बना है उस पर इलेक्शन होगा। भरपूर तैयारी में है। मीटिंग्स मेरी पिछले 2 महीने से जारी है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के परचम के नीचे मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक और बीबी मरियम के हुक्म के मुताबिक भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। ये बताइए कि आपने कहा मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म, मुस्लिम लीग नून जो है मुल्तान के अंदर खासी तकसीम नजर आती है, मतलब हर किसी के अपने अपने ग्रुप्स हैं, तो कैसे मुमकिन होगा कि आप जो है वो सबको जो है मुत्तहिद करने में? जी अभी तो बल्दियाती इलेक्शन जो है ना गैर जमाती होगा। अगर गैर जमाती होता है तो फिर मेरी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ा जाए। और मुस्लिम लीग नून में डेफिनेट हर बंदे की ख्वाहिश भी होती है और उसको हक भी हासिल है कि आप ग्रुप बनाए और वो इलेक्शन लड़े। बिल्कुल साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई जो कि साबका दौर के अंदर भी मेयर मुल्तान अपना बनवाने में कामयाब हुए थे, उनका कहना है कि भरपूर तरीके से तैयारी का आगाज़ कर दी है। दोस्तों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और वो दोबारा कोशिश करेंगे कि मेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून से हो और उन्हीं के ग्रुप का हो। जी शुक्रिया। जुनेद अनवर हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। नफरत अंगेजी, इश्तिआल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। आपको बताएं इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। आपको अपडेट करते चले, हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की जानिब से शहरियों को 17 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा इफ्तिताह कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसों का किराया 20 रुपये मुकर्रर। स्पोर्ट्स ग्राउंड में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे आमिर डोगर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय HEC सरदार अजमल खान चांडिया ने मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया और इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फरगढ़ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं। इस हवाले से इंतजामिया का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। मुजफ्फरगढ़ के शहरी इस इकदाम को किस नजर से देखते हैं, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं।
क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फरगढ़ की सड़कों पर दौड़ेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो वजीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का जो इक़दाम है वो बहुत ही अच्छा है, और हमारे शहर में आज जो है वो ईद का समा है, और ये हम लोगों के लिए बाइस फख्र ये चीज़ है कि हमारे जो मसाइल थे खास तौर पर ट्रांसपोर्ट को लेकर और ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से और लेडीज़ के हवाले से जो थे वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, और हम इस चीज़ पर जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आप क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फरगढ़ की सड़कों पर दौड़ेंगे? अरे ये बहुत अच्छे काम है, हम मुजफ्फरगढ़ की तरफ से जिस मुजफ्फरगढ़ सीएम के साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये देखें आलूदगी से पाक गाड़ी दे रही है, आपके पीछे खड़ी हुई है। सबसे जो बेहतरीन और सबसे अच्छी बात है वो खवातीन के लिए किराया नहीं है, और खासतौर से स्टूडेंट के लिए। आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, स्टूडेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना और किराया देना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। शहरियों का कहना है कि बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी, और ये बसें जो है वो माहौल दोस्त हैं, इससे जो फिजाई आलूदगी पर भी काबू पाने में जो मदद मिलेगी। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक का बहावलपुर के जारी तरक्याती कामों का मुआयना, फरीद गेट और शाही बाजार की ताज़ीन और आइश के कामों का मुआयना किया। गवर्नमेंट सादिक डीन हाई स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल भट्टा नंबर 1 का भी दौरा किया। सफाई सुथराई, कारकर्दगी, हाजिरी और तदरीसी अमल समेत शजरकारी और रिवैम्पिंग का जायजा लिया। सेंट्रल लाइब्रेरी की रिवैम्पिंग और ताज़ीन और आइश की जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। लेडीज पार्क, चौक सराय की और ईदगाह पार्क का भी दौरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी आ गई, मगर कारोबारी हालात में बेहतरी ना आ सकी। ताजर कहते हैं मुल्की हालात की वजह से कारोबारी हालात तब्दील नहीं हो रहे। तफसीलात जानेंगे सलमान ज़मीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त पेट्रोल के रेट तो कम हो चुके, मगर हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही। हुकूमत एक तरफ दावे करती है कि पाकिस्तान जो है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इकॉनमी इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बूस्ट कर रहा है, मगर दूसरी जानिब मार्केट्स के क्या हालात हैं जानते हैं दुकानदारों से। सर क्या कहेंगे कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है और इकॉनमी कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रही है, तो क्या मार्केट के हालात बेहतर हुए हैं? सब बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुए। हम तकरीबन 9 बजे की हमारी मार्केट ओपन हो चुकी होती है और हालात बिल्कुल ही बदतर है, और ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है कस्टमर्स की, कोई जोड़ा लेने आए हुए तो कहता है भाई पैसे नहीं है, हालात नहीं है, आज यही कमाया यही मैं आपको देकर जा रहा हूँ। इसमें जो हम जहाँ तक हो सकते हैं फिर हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि कारोबारी हालात जो हैं वो किस तरीके से बेहतर किए जा सकेंगे? जब आप प्यार इखलाक होगा सारों के अंदर, इत्तेफाक से चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में बेहतरी आएगी। सब प्यार मोहब्बत से चलें, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी कारोबार में आ जाएगी। कारोबार में बेहतरी उसी वक्त ही आ सकती है जब हुकूमत पॉलिसियाँ बेहतर करते हुए आवाम भी उनका साथ दे, तब जाकर जो कारोबारी हालात हैं वो बेहतर हो। जी शुक्रिया सलमान ज़मीर अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी ने टैक्स दुगना कर दिया है। पहले 20 रुपए टैक्स लिया जाता था, अब 40 रुपए टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स में अचानक 20 रुपए का इजाफा समझ से बाहर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मज्जाज से। मियांवाली में चिंची ड्राइवरान जो हैं उनको भी रोजी कमाना मुश्किल हो गया, क्योंकि 5 रुपए फिर 10 रुपए टैक्स किया गया, फिर 15 हुआ, फिर 20 और अब यकदम टैक्स जो है डबल कर दिया गया। 40 रुपए जो है रोज़ाना टैक्स लिया जाता है, जिसकी वजह से चिंची के जो ड्राइवरान हैं इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। दसो जी कितना टैक्स गिनने थे, मसला क्या है? सर मसला है कि सानू कोई सहूलत नहीं है जी, कि एक होंदा है ना भी कोई सहूलत होंदी है, कोई स्टैंड वगैरह होंदा है, कोई चीज़ होंदा है, कोई तो को नहीं। तो सर 6वें महीने ठेका होंदा है, 6वें तो बाद अगे साल तो बाद चलो कोई 5-10 रुपए 2 रुपए बंदा वधांदा है। इन्ना 6वें तो हुण 10वां महीना है सर, 10वें च इन्हां ते केड़ी हो गई है कि इन्ना जड़ा है ना सारा 20 तो 40 रुपए कर दिता है जी, जेड़े कि बड़ी मुश्किल नाल जी आदमी कमांदा है जी पैसे जी मुश्किल नाल के साथ कमाई की जाए। तुसा दसो भाई तुहानू कोई टैक्स च गिनने 40 रुपए को तुहानू सहूलतां ही देने क्या? कोई सहूलत सर कोई नहीं, कोई सहूलत कोई नहीं। 20 ते 40 टैक्स कर देता ने जी, जबरदस्ती गिनन सवेरे आके मुंशी, उस तो बाद मरेंदे पटेंदे इन ड्राइवरां नू पहले 20 रुपए आई, हुण रुपया वधे ना 4-8 आने ना जी। 10वें महीने कोई तुक नहीं बनता वधाउण दा, 10वें महीने ने 20 रुपए और बता दे। सारी 500-700 रुपए मजदूरी होती है, 40-50 ये गिननी चाहिए। सारा जुल्म है, वज़ीर आला साहब से अपील है सारी जी, मेहरबानी की वजे सारे नाल वापस किया ये टैक्स जी। ठेका हुआ
जिससे 6वें में जून में ठेका हुआ और 4 माह। जी शुक्रिया अख्तर मजाज हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बकर से खबर दें, बकर में सर्दियों का आगाज होते ही भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला सयाह धुआं आलूदगी का बायस बनने लगा है। दरिया खान रोड पर भट्टा मालिकान खुश लकड़ियां जलाने की बजाय सर सब्ज पत्ते जलाने लगे हैं। भट्टों पर लगाई गई वाटर मोटर फाइन भी बंद है। मजीद तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। असलम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बकर में ईंटों के भट्टे स्मोक का बायस बनने लगे हैं। ईंटों के भट्टों से, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है वो सियाह बादल की तरह जो है वो भरने लगा है, जिसकी वजह से सांस लेना भी आवाम के लिए दुश्वार हो चुका है। अगर बात की जाए बकर, बेल रोड, दरिया खान रोड, ख्वावड़ कलां और दीगर इलाकों में भी भट्टों ने हथ मचा दिया है। भट्टों में जो है वो खुश्क जो है वो ईंधन जलाने की बजाय सब्ज ईंधन जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये धुआं जो है वो उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है, लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से इन भट्टा मालकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पे जो जिग जैग के लिए जो मशीनरी नस्ब की गई थी वो भी बंद पड़ी है। इसके अलावा जो आग में काबू कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको नम करने के लिए जो लगाया गया फुहारा था वो भी बंद पड़ा है। मशीनरी भी बंद पड़ी है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब एक यहाँ हमारी लोगों से बात हुई, उन्होंने ये मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि इसका नोटिस लिया जाए, जो स्मोक का बायस बनने वाले भट्टे हैं इनको सील किया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इनको पाबंद बनाया जाए, ताकि आलूदगी जो है उसको। जी शुक्रिया असलम अपडेट करने के लिए। भी आपको बताएं, सरगोदा में गैस की जगह पाइपों से हवा आने लगी। शहरियों को भारी बिलों के बावजूद गैस से महरूमी का सामना है। तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। अभी बिल्कुल महकमा सुई गैस की जानिब से भारी बिल तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन गैस की बजाय ज्यादातर दही इलाकों के अंदर जो है वो हवा आ रही है, जिससे शहरी जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन गैस जो है उसकी एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, दूसरा जब गैस आती है तो हवा ज्यादा होती है। शहरी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिल भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी इस वक्त जो है गैस तो तकरीबन ना आने के बराबर है। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो उसमें सिर्फ हवा आती है, आधे पौने घंटे के बाद गैस आना शुरू होती है। तो गैस की पोजीशन ये होती है कि अब इस वक्त मैंने जो गैस इस्तेमाल की है उसका बिल है 170 रुपये, जबकि गवर्नमेंट ने मुझे 2200 रुपये बिल भेजा है, जिसमें उन्होंने फिक्स चार्जेस हैं तकरीबन 1500 रुपये, इसके अलावा बाकी टैक्सेस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अब नया मीटर लगवाना वो अजाब बन गया है कौम के लिए। अगर नया मीटर लगाएंगे तो आपने 5000 रुपया पर मंथ तो देना ही देना है, ये हमें सुई गैस वाले खुद बता रहे हैं। अब भी आप देख लें कि 170 रुपये गैस का अगर मैंने 27 रुपये बिल पे करना है तो क्यों ना मैं LGP की तरफ चला जाऊं, वो मेरे लिए बेहतर है। जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का भी यही कहना है कि भारी बिल भेजे जा रहे हैं, गैस के नाम पे हवा भेजी जा रही है, लेकिन गैस ना होने के बराबर आ रही है, जबकि इतने ज्यादा टैक्सेस बिलों के अंदर लगा के भेजे जा रहे हैं। 170 रुपये की अगर गैस इस्तेमाल की है तो तकरीबन 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। बहावलपुर में पहले 3 रोज के दौरान 93% टारगेट हासिल कर लिया गया। 8,24,000 में से 7,63,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। अब तक मजमूई तौर पर 63 रिफिल केसेस सामने आए, जिनमें से 62 केसेस को निपटा दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। गुज़िश्ता 3 रोज की एक्टिविटी की बात करते चले तो 93% टारगेट जो है वो हासिल कर लिया गया है। 8,24,000 बच्चों में से तकरीबन अब 7 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जा चुके हैं। टीमें आज आखिरी रोज भी मुतहर्रिक है। मैं कराची मोड़ के ट्रांजिट पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर टीमें जो हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रोककर आखिरी रोज कतरे जो हैं वो पिला रहे हैं। टीमों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा जी, यहाँ ट्रांजिट पॉइंट पे कितना जरूरी है बच्चों को रोककर कतरे पिलाना, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है? सर ये एग्जिट पॉइंट है, तो मोस्टली तो हमने जो देखा है ना बच्चों ने, तो उन्होंने ना घर में पिए हुए थे, लेकिन जो शहर से बाहर जाते हैं ना आउट सिटी वाले, तो उनको ज़्यादातर जो है ना हमने उनको रोका है, उनको हमने पोलियो के डोज पिलाए हैं। तकरीबन 3 दिन के मेरे हैं 35 हैं टोटल ना, जिन बच्चों को जिन पोलियो डोज हमने किया। कोई तब्दीली भी आई है? इतने अरसे से कतरे की ये पोलियो की मुहिम चल रही है, तो वालिदैन अब थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं कतरे पिलाने को? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, माशाल्लाह वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया है। हमने जिनको भी रोका है किसी ने इनकार नहीं किया फिलहाल तो। आप बताएं क्या एक्टिविटी रही फिर यहाँ पर?
हम 3 दिन से यहाँ कतरे पिला रहे हैं। हम जिनको भी रोकते हैं वो अगर थोड़ा सा आगे भी चले जाए तो वो पीछे मुड़ के आ जाते हैं कतरे पिलाने के लिए अपने बच्चों को। तो हमारे 3 दिन में तकरीबन 35 से 40 बच्चे हो गए हैं कतरे पिलाते पिलाते हम यहाँ। आखिरी रोज का क्या पैगाम होगा? आखिरी रोज इंशाल्लाह आज बच्चे बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिला लें। बिल्कुल जी, ये सबकी कलेक्टिव एफर्ट है, कौमी मुहिम है जो कि जारी है। और अगर हम रेफ्यूजल केसेस की बात करते चलें तो टोटल 63 अब तक आए। बहावलपुर में डेंगू सर उठाने लगा, शहरियों का निशाने पर रख लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 शहरियों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। सरसादिक आबासी अस्पताल में 3, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। बहावलपुर से खबर है, बहावलपुर में डेंगू सर उठाने लगा है, शहरियों को निशाने पर रख लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 शहरियों में डेंगू की बुखार की तस्दीक। सर सादिक आबासी अस्पताल में 3, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। आगे बढ़े आपको बताएं, रहीमिया खान की ख्वाजा फरी यूनिवर्सिटी में आलमी यौम खुराक पर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मुर्तज़ा ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। जायके, तख्लीक और साइंस का हसीन इम्तिजाज, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। यौम आलमी खुराक है, इसी मुनासबत से ख्वाजा फरी यूनिवर्सिटी के फूड साइंस डिपार्टमेंट के ज़रिए एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। खुराक कैसी होनी चाहिए ये तो बताया जा रहा है, मगर अंडों के आलमी दिन को भी आज के दिन के अंदर मिक्स कर दिया गया। आज यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो सब अंडों से तैयार चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने क्या कुछ बनाया जी यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हमने एग डे थीम रखा है। तो हम लोगों ने एज ए न्यूट्रिशन स्टूडेंट हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इनोवेशन करें कि जो बच्चे एग नहीं खा सकते वो डिफरेंट तरीके से इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ओवर स्लाइस जो है प्रोटीन रिच पिज़्ज़ा बनाया, जिसमें हमने जो डो है आमतौर पर वो मैदा यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों ने इसमें एग की डो बना के उसके ऊपर चीज़ और चिकन और वेजिटेबल्स को जो है वो हमने इसके ऊपर प्रेजेंट किया है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये प्रोटीन रिच है, ये आपको मसल वेस्टिंग और वीकनेस से बचाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमने ये जो है चिल्ड्रंस के लिए खास तौर पे ये जो ओवर क्रंच बर्गर के तौर पे इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो बच्चे अंडा नहीं खा सकते तो हमने किस तरह से उनको देना है। हमने बॉयल्ड एग लिया है, उसकी योक के अंदर हम लोगों ने जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने की कोशिश की है और इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं ताकि आपको फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें। ख्वाजा फरी यूनिवर्सिटी में जो एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें फूड साइंसेज, न्यूट्रिशन के तमाम सेमेस्टर्स के बच्चे इसमें 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, अपने स्टॉल्स लगाए हैं, आइडियाज़ पेश किए हैं कि अगर अंडों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाए तो फिर अंडों को किस तरह से मज़ेदार खानों में, कॉस्मेटिक्स में या दूसरे। जी शुक्रिया आसिम सदीक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।